This is important. Again theoretical, but थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हुए, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी? है ये भी बिजनेस स्टडीज का पार्ट, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन आए हुए हैं. What are the different stages? First stage, promotion, then incorporation, then capital subscription, and lastly, commencement of business. A public limited company, a public limited company cannot commence business without the commencement certificate. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा, पता है ना. एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट. पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन कमेंस बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. हाँ, प्राइवेट पब्लिक, तो प्राइवेट पब्लिक में यहाँ पे मैंने बताया प्रोस्पेक्टस, सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट, जरूरी नहीं समझा, ठीक है, तो जस्ट रीड. बट लेकिन मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कवर हो ही जाएगा कि इनकॉर्पोरेशन एक स्टेज है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक अलग स्टेज है. आई रिपीट, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. A public limited company cannot commence business unless it clears all those stage, all the 4 stages. The last one being commencement of business. So commencement of business आप तभी कर सकते हैं when you get the certificate of commencement. तो चलो, पहला promotion. It is the first stage of the company's incorporation. A person or group of persons agree. चलो एक idea आया, business करते हैं. They agree to start a business in the form of a company. These persons are known as promoters. Promoters. हो गए जी प्रमोटर इकट्ठे. चलो अब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है. A company is incorporated following the procedure prescribed in the Companies Act 2013. The promoters, after getting the name of the proposed company approved from the registrar of companies, submit memorandum of association. पहले आप अपना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से नाम अप्रूव कराएंगे कि भाई ये नाम कोई और तो यूज नहीं कर रहा. जब सब कुछ हो गया तो आप सबमिट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. क्या होता है उसमें? आप बताएंगे कितने शेयर्स हैं, क्या वैल्यू है, articles of association, consent of first directors to act as directors, and a declaration. Just read. You don't have to learn it. You don't have to learn it. Stage का नाम पता होना चाहिए. Second stage का नाम incorporation और registration of a company. अब ये important point है. The registrar of companies thereafter कि हाँ जी हो गई आपकी फॉर्मेलिटी पूरी, अब हम आपको क्या दे रहे हैं? Certificate of incorporation. You have been duly incorporated as a company under Registrar of Companies, Companies Act of India. Thereafter, the company comes into existence. अब आप exist करते हैं. अब आप काम कर सकते हैं? नहीं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर सकती है. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कमेंस business after receiving the certificate of incorporation. A public limited company cannot commence business without the
सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट से पहले कंपनी क्या करती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज फुलफिल करती है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कंपनी इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर्स खरीदें। अ कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। किस कंपनी की बात हो रही है, for which declaration is to be filed within 180 days of its incorporation. A company has to submit a declaration to the effect that every subscriber to the memorandum has paid the amount to be paid for shares undertaken by them. Prospectus. Prospectus is an invitation to the public to apply for shares of the company. Prospectus. A public issues a document called prospectus in which terms and conditions of issue are stated along with the purpose for which proceeds. क्या आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, पैसे चाहिए, पर्पस क्या है, कैसे यूज करेंगे, आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। Prospectus means a document, any document described or issued as a prospectus which includes a red herring prospectus or a shell prospectus or any notice. You don't have to learn the definition, but basic content inviting offers from the public for subscription or purchase of any securities. So prospectus is an invitation to the public in general, invitation to the public to subscribe for shares of the company कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें। अब जब कंपनी इनवाइट कर रही है लोगों को, तो एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। क्या फुलफिल करना होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। क्या मतलब, प्रोस्पेक्टस में आपने बताया कि आप इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस, तो आप बताएंगे कितने रुपए की एप्लीकेशंस आप इनवाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इनवाइट कर रहे हैं 500 करोड़ रुपए की, तो आपने पर्पस मेंशन किया हुआ है कि वो 500 करोड़ आप कैसे यूज करने वाले हैं। अब फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस आई 300 करोड़ की, आपने तो 500 करोड़ की इनवाइट करी थी, बट नहीं करे लोगों ने, नहीं जानते वो आपकी कंपनी के बारे में, बट फिर भी 300 करोड़ की एप्लीकेशंस आ गई, तो क्या कंपनी करेगी इस केस में? 300 करोड़ से बिजनेस शुरू कर देगी। यस और नो, यस और नो? नो, कंपनी कैन नॉट गो अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एक क्लॉज निकाला, आप सोचो आपने बोला कि यार ये बिल्डिंग बनानी है, इसका ना 500 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, आपके पास आए कोई बात नहीं, हम 300 में मैनेज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अबे अभी तो कह रहे थे इसमें 500 की रिक्वायरमेंट है, अब आप कह रहे हो 300 में कर लेंगे, मतलब बिल्डिंग का काम शुरू कर देंगे, थोड़े घर बिक जाएंगे, तब तक और पैसा आ जाएगा, फिर हम इसमें फिटिंग्स भी लगा देंगे। नहीं भाई साहब, आप गैम्बल कर रहे हो, फिर तो आप एक रिस्क ले रहे हो, जो पैसे डाले ना वो भी अटक जाएंगे। और क्योंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, हम ये रिस्क, हम कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कंपनीज एक्ट, ये वॉच गार्ड्स है, सेफ गार्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो तो ऑपरेट कर नहीं रहे बिजनेस को, बिजनेस को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो सेबी गाइडलाइन सेट करती है, तो उन्होंने बोला कि भैया ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आएगी विच इज 90% of what you sought for, you sought applications for 500 crores, minimum 90% application which is 450 crores must have been received। मिल गए, बहुत खुशी की बात है, आप कोई बात नहीं, 90% मिल गए ना, you can go ahead with the allotment of shares, you don't need 100%। but अगर 89% भी हैं, you have to refund all the money within the prescribed time period, and if you fail to do so you will have to pay interest also। बहुत लॉसेस हो जाएंगे, बहुत लॉसेस हो जाएंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। इससे बचने के लिए, मतलब क्योंकि इतनी रिस्की सिचुएशन है, सो मच वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विल हैपन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मीट नहीं हुई, तो इससे बचने के लिए क्या करती है कंपनी, अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है। क्या करती है, अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है। तो अंडर राइटर्स आर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और other companies, financial companies, which take up the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria।
वो कह रहे हैं टेंशन नहीं, हम है आपके अंडरराइटर्स, हम करेंगे मार्केट में ये फ्लोट, हम बेचेंगे आपके शेयर्स। बाई चांस पब्लिक ने नहीं सब्सक्राइब कर लिया, बहुत खुशी की बात है, नहीं करे तो जो भी शॉर्टफॉल है वो अंडरराइटर्स खरीद लेंगे, कंपनी की टेंशन खत्म। बट उसके लिए एक छोटे सा कमीशन देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटर्स का पर्पस समझ आया, अंडरराइटिंग कमीशन का पर्पस समझ आया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ सेबी, तो दोनों सेफगार्ड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट दैट द कंपनी स्टेट्स इन द, कंपनी से कह रहा है कि यार आप अपने प्रोस्पेक्टस में खुद ही बता देना आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। सेबी ने बोला आप अपने आप छोड़ो, वो तो आप तो बोल दोगे 20%, इतना भी आ गया तो हम संभाल लेंगे। कह रहा नो, minimum subscription of 90% of the shares issued for subscription must be received before the company can start allotting the shares. किसने बोला? सेबी ने बोला। सिक्योरिटीज एंड, तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन आएगा कंपनीज एक्ट ने बोला या सेबी ने। 90% की लिमिट किसने सेट करी? नहीं पढ़ रखा तो 100% आप कंपनीज एक्ट ही लिखेंगे। मैं भी वही करता अगर मैंने नहीं पढ़ रखा, सेबी कहां से आ गया, हम तो कंपनीज का ही कर रहे हैं सब कुछ। तो ऐसे उनको भी पता है, फिर वो क्वेश्चन भी उस हिसाब से ही सेट करते हैं कि कौन पढ़ रहा है, कौन सिर्फ पन्ने पलट रहा है और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहा है। कंपनीज एक्ट की थ्योरी जनरल नॉलेज नहीं है, कर रखी होगी तो आती है, नहीं कर रखी होगी तो नहीं आती, और इसमें थ्योरी आती है एग्जाम में। Thus, in case of public issue of shares, at least 90% of the sum payable, ठीक है जी बता दिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बता दिया, ठीक है। सर ऐसा क्यों, इतना अत्याचार क्यों कि अगर 90% से कम है? कह रहे आप समझे ना, आपने एक पर्पस बताया था कि ये पैसा कहाँ यूज होना है, क्या है, तो वो फिर रिस्की सिचुएशन हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चे, लीगल वर्क। Preliminary expenses are expenses incurred for incorporating registration of commencement of business तो हुई नहीं, incorporation तक जो जो आपका खर्चा है, such as registration fees, legal expenses, preparation of project report, public issue expenses, or if a new project is started. These expenses, तो meaning clear है, expenses incurred for incorporation of the company, expenses incurred before the commencement of business of the company। अब expenses तो हो गए, अभी तो रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो भाई साहब एक्सपेंसेस कहां से राइट ऑफ करोगे? कह रहे जब शुरू हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर में ही ये एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो जाएंगे। कहां से राइट ऑफ हो जाएंगे? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस पड़ा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम होगी। अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व में पड़ा हुआ है तो कैपिटल रिजर्व होगी। आगे जाके हम देखेंगे, इसमें भी अमेंडमेंट आ गई है। बट पॉइंट कि अगर आपके पास ये रिजर्व पड़ा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, थ्योरेटिकली सुन लेते हैं इनकी बात कि कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो वो रिजर्व यूज होगा ये लॉस राइट ऑफ करने में। नहीं तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अपना एक बिजनेस एक्सपेंस के थ्रू मान के उसको राइट ऑफ कर देंगे। बट इन द सेम ईयर इन विच इट वॉज इनकर्ड। पहले क्या करते थे, इसको डेफर करते थे, 3 साल में राइट ऑफ करो, थोड़ा तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होता था। अब ट्रीटमेंट चेंज हो गई है, फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, these expenses are written off in the year in they are incurred, तो फर्स्ट ईयर itself। ओके, मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता नहीं सकता, बट आपकी जो बेस स्ट्रांग होगी वो थ्योरी की वजह से ही होगी। तो मेरी एडवाइस होगी कि ढंग से करना, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं।